बांग्लादेश से खुसूसी तौर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और पूरी की पूरी मामला हुआ क्या, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी वलीउर रहमान। वली, आई वुड लाइक स्टार्ट विद यू एंड आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, so just to make our local audience understand better, I'll help translate whatever you say in Urdu. So Wali, first of all tell us, we understand that after the January elections there was a controversial government that Hasina formed, but what actually happened? What led to her forced resignation today? Yeah, in fact, it all started with the quota reform. In fact, the quotas in the government jobs. So, on 4th of June, the High Court abolished a system that under that, in fact, the quota was. There was no quota, but in fact, the High Court restored the quota system, and then the students started, protesting. So from July 1st, they started, protesting in the Dhaka University campus, because these are basically first job, and 56% of the government job would go to various disadvantaged group. One of them is the freedom fighters' children, or their grandchildren. So when they started protest, in fact, on 14th of July, the Prime Minister held a press conference in Dhaka, and this issue came up. A journalist asked whether she supported the protest by the students. Then she said that she made some comment, in fact, that made the students angry, and from that night, the students took to the street. And they, in fact, they became very angry. The next day, in fact, the ruling party's students' wing, they in fact attacked the general students, and then things went out of control. And that was how it all started. And what do you think pushed Hasina to resign today? What was that pinnacle that pushed her over? Okay, so today, in fact, the students were supposed to march towards her residence. It's called Gana Bhavan. So that was the scheduled program of the students, and but we heard, there were rumors that Sheikh Hasina has already left. So, but at first time we heard that the army chief will be addressing the nation at 2 o'clock. 2 p.m. Bangladesh time. Then it delayed, and finally he spoke to the nation at 4 o'clock in the afternoon. And there the army chief, General Waqaruzzaman, announced that Sheikh Hasina has resigned. And perfect. And then we all saw it. Okay, so Wali, quickly help us understand what's next. Does the army take over indefinitely, or there are talks of an interim government? How does that work out? It is not still clear whether the army took over or not, because there is no formal announcement of that. But what the army chief said, that he will be going to the Bongo Bhavan, that is the presidential palace, and he will be meeting with the president. So the meeting is now taking place. Oh, okay, it is and yeah, so in fact they will be discussing about how to form an interim government, and they will run everything. So we still don't know whether that will be led by the army chief himself, or that will be a civilian government. So we still don't know. But there will be some form of interim government that will run the country. And what is the opposition stance in all of this? We understand they were in a lot of pressure as well. A lot of them are incarcerated as well.
The opposition so far, in fact, asked the general people to, to stay calm so that they don't go for any, revenge or anything like that. But we still don't know whether the opposition is going to accept this interim government or not. So we'll be, okay. In fact, we'll wait to see that. Okay. And Wali, what are your expectations? Do you think Hasina's resignation will help calm things down? Will that not be the case? I think it will take time because that the people are so angry that that today they went to Gana Bhavan, the official residence of Sheikh Hasina, and they ransacked everything. It was like Sri Lanka. When Rajapaksa left the country, then what happened in Sri Lanka, we all know that. So same thing happened in Bangladesh. So people, in fact, stormed the parliament building, people stormed the prime minister's office, and they set fire to several, building linked to the Awami League party. Okay. So people are so angry. We still don't know what happened to the ministers. We have no information about that so far. So it is not that the situation will calm down very quickly, but it will be the responsibility of the military and the administration to calm everything down. Okay, well, you stay with us. There's a lot of more questions we have for you, and of course, we want to know how the situation is right now as well. But let me include Professor Adil Saab and Uzair Yunus as well. Adil Saab, आप कहिएगा, जैसे अभी वली भी बता रहे थे कि उनके ख्याल में हसीना वाजिद का जाना, उनका इस्तीफ़ा चीज़ों को काम डाउन नहीं करेगा या उनसे हालात की बेहतरी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो इस्तीफ़ा आया है, जो मुज़ाहिरे हुए हैं, एहतजाज हुए, इससे क्या पैगाम लेना चाहिए, क्या मानी रखता है ख़ास तौर पर खित्ते के लिए? दो चीज़ें, बहुत शुक्रिया लीना। पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो सवाल है बांग्लादेश के सामने वो इस तरफ कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे बड़ा सवाल जो उनकी मिलिट्री है कारुज़मा साहब ने ये है कि क्या चीज़ों को बदतर होने से बचाया जा सकता है। एंड इस वक्त दैट इज़ अ लाइव क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह से एक ट्रायम्फलिज्म भी है उन यंग लोगों में जिन्होंने एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत लीडर को ओवरथ्रो किया। एक तरह से वो गुस्सा भी हमें अभी तक नज़र आ रहा है, हमें एक अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है। तो पहला जो हदफ है वो ये है कि चीज़ें बदतर ना हो, और उसके बाद जो काम है उसके दो चार पहलू हो सकते हैं। एक काम का मतलब तो ये है कि जो वायलेंस है कि कल के दिन 100 यंग लोग, 100 यंग पीपल डाइड। खबर सिर्फ नहीं है कि हसीना वाजिद जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, खबर ये है कि एक दिन में 100 यंग लोग जो हैं उनको दे लॉस्ट देयर लाइफ। पिछले हफ्ते में 300 यंग पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। एक तरह से नौजवानों की तरफ से ये आप रेवोल्यूशन कह लें या चेंज आई है, लेकिन उनके खिलाफ भी नौजवान थे। हसीना वाजिद की हुकूमत के जो फेस थे वो उनके साहबजादे थे। हु वाज लीडिंग उनका जो यूथ विंग है जो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक बड़े अहम किरदार करता था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये सोचना कि बस क्योंकि हसीना वाजिद चली गई हैं, हसीना शेख चली तो अब सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, आई डू नॉट थिंक सो। उसकी एक और पहलू जो है वो ये है कि सियासी काम कब आएगा। सियासी काम का मसला ये है कि क्या पूरी फौज इस कार्रवाई के साथ है। लगता ये है कि नहीं है, क्योंकि पिछले 16 साल में हसीना वाजिद ने फौज के अंदर अपनी जो सपोर्ट थी उसको बहुत मुस्तहकम कर दिया था, और एक तरह से बहुत से लोग समझे जाते थे कि उनके अपॉइंटीज हैं। तो एक सवाल तो वो है, और दूसरा जो है वो ये है, जैसे आपके गेस्ट ने भी कहा बांग्लादेश से, कि सूरत हाल इंटरिम गवर्नमेंट की होगी क्या, क्योंकि देयर इज नो सेट पैटर्न कि वो क्या होगा। क्या वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या वो एक फौजी हुकूमत होगी, क्या उसका काम जो है, क्या उसका हदफ ये होगा कि हमने इलेक्शन कराने हैं जो भी होता है, या उसका हदफ ये होगा कि हमने पहले काम लानी है और जब आएगी तो फिर इलेक्शन करेंगे। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे सबसे बड़ा सवाल देखने वाला ये होगा कि अगले 1-8 घंटे में जो स्टेटमेंट आएगी उस स्टेटमेंट आपको बताएगी कि इलेक्शन कब होंगे, या आपको बताएगी कि हमारा क्या प्लान है काम लाने का। अगर दूसरा रास्ता होता है तो दैट मीन्स
कि इट मे बी अ लॉन्गर ड्रॉन प्रोसेस। उज़ैर, आप कहिएगा, एक तरफ ये कहा तो जा रहा है या एक नज़रिया इसको देखने का ये हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन आई, अवाम की ये राय थी और उनकी मर्ज़ी से जो इक़्तिदार की तब्दीली है या इंतकाल है वो हुआ, लेकिन क्या इससे मज़ीद बेहतरी आ सकेगी या ये केओस की तरफ जाएगा? अभी तो बहुत जल्द है कहना कि किस तरफ जाएगा, लेकिन लाइव आने से पहले मेरी कुछ ढाका में दोस्तों से भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशंस को आग लगाई जा रही है, इस वक्त बिजनेसेस को प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, राइटिंग हो रही है। तो इस वक्त तो इंस्टेबिलिटी या इंतशार का माहौल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ढाका में एटलीस्ट है। और जैसे डॉक्टर नजम ने भी कहा कि 300 के करीब लोग, कल सिर्फ 100 के करीब लोग मारे गए, तो एक उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, इसकी वजह से क्या होगा वो भी देखना होगा। और देखें, अगर हम दुनिया भर में देखें, मिस्र में जो है अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुई, टूनीशिया में हुई और बाकी ममालिक में हुई, तो शुरू में तो एक खुशी की लहर दौड़ती है, ढाका में भी लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद निज़ाम किस तरह चलेगा और क्या लोग होंगे जो इस निज़ाम को चलाएंगे, इस पे जो है वो देखना पड़ेगा। बांग्लादेश की तारीख में जो है वो मार्शल लॉ का भी टाइम रहा है, इंटरिम न्यूट्रल कोट अनकोट जुडिशरी से भी हुकूमतें चलाई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों पे देखना होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये है कि नौजवान बांग्लादेश के बाहर निकले और एक ऐसी रेजीम या एक ऐसी हुकूमत जो कि अनपॉपुलर थी, इलेक्शंस रिग करवा के जीती थी, उसको हटाया उन्होंने, और उसको उन्होंने सिर्फ सड़कों पे आके नहीं बल्कि सोशल मीडिया के बहुत अच्छे इस्तेमाल से प्रेशर में डाला। तो ये खुशाइन बात है इस तरह से कि एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल, वन पार्टी रूल जो है वो इतना मजबूत नहीं होता जितना लोग काफ़ी दफ़ा उसे समझते हैं। अच्छा आदिल साहब, आप कहिएगा, शेख हसीना की जो भारत के साथ कुर्बत है, किसी के साथ ढकी छुपी नहीं, और भारत का जो बांग्लादेश के थ्रू असर और रसूख खित्ते में, क्या समझते हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद उसमें कुछ कमी आएगी और बदलाव किस हद तक हो सकता है या क्या हो सकता है? जी, इसका इन्हिसार सबसे पहले इस बात पे होगा कि बांग्लादेश में जो हुकूमत बनती है वो कौन बनाता है और वो अशखास कौन हैं और उनका क्या एटीट्यूड है भारत की तरफ। अगर वो सियासी हुकूमत बनती है, चाहे वो इंटरम हो, उसमें सियासी पार्टीज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है, अगर वो उसका हिस्सा बनती है तो उसकी तारीख ऐसी नहीं है जैसी भारत से अभी ऑलरेडी हमें आवाज़ें ये आ रही हैं कि ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बांग्लादेश में कोई ऐसी हुकूमत देखें जो भारत के साथ उसकी एक कुर्बत हो। भारत की कुर्बत जो है वो खुद बांग्लादेश की सियासत में एक मसला बन गई थी हसीना वाजिद के लिए, एंड दैट विल रिमेन एन इशू। भारत की तरफ से आप यकीनन कोशिश देखेंगे कि वो एक प्रो इंडिया हुकूमत आए और एक प्रो इंडिया पॉलिसी जारी रहे, और एक हद तक रहेगी, इसलिए कि वो बांग्लादेश की एक जोग्राफियाई ज़रूरत भी है। लेकिन जिस हद तक हमने हसीना शेख के साथ देखी, आई डू नॉट थिंक दैट विल रिमेन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। उज़ैर, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और इसकी फिर एक एक्सटेंशन मैं बिल्ड करता हूं डॉक्टर नजम की बात पे। वो ये कि जहां मैं एटलीस्ट बैठा हूं अमेरिका वाशिंगटन में, वहां भी एक तरह से व्यू पाया जा रहा था कि जो भारत की जियोग्राफिक नेबरहुड है, बिलखुसूस ईस्ट की तरफ, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल वगैरह, वो भारत अपने हिसाब से इंगेज करे और वहाँ भारत का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ता है तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये व्यू से कई लोग बिलखुसूस बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स वाशिंगटन में इत्तेफाक नहीं करते थे, कहते थे कि इससे इंस्टेबिलिटी पूरे खत्ते में बढ़ सकती है ईस्टर्न साइड पर। और आज जो है, जो एटलीस्ट मेरी इन लोगों से बात हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि वाशिंगटन की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि हम दिल्ली के जो इंटरेस्ट हैं ढाका में बिलखुसूस उन्हें प्रायोरिटी देंगे, वो एक तरह से इस वक्त एटलीस्ट, क्योंकि शेख हसीना छोड़ के अब भारत जा चुकी हैं, तो वो बैकफायर कर गई है। अब अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी उस खित्ते में किस तरह एडजस्ट करता है,
ये भी देखना होगा। हम भूल जाते हैं कि म्यांमार में भी इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं और भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में मणिपुर में कई महीनों से जो है वहाँ भी हालात ख़राब हैं। तो ये पूरा जो ईस्टर्न फ्लैंक है बिम्स्टेक का इस तरह से जो भारत जिसे कहता है, या ईस्टर्न इंडो पैसिफिक का, वहाँ इस वक्त जो है काफ़ी इंस्टेबिलिटी है और आने वाले महीनों में बढ़ सकती है।